Assalamu alaikum. Today's topic is organization, and it is I've designed or planned this lecture according to the smart syllabus of first year students. And first, for the syllabus mentions organization and its forms, and basic introduction of its forms. And it's as I've written here, it's chapter 10 from Habibullah Wasif's book for FA part 1. And during the video, don't mind my coughing because I'm not feeling very well. Okay, let's begin with the meaning of organization. So, giving you a little background of or a recap of what we have been doing in previous videos was we started off factors of production, and we did land, labor and capital, and now we have reached the fourth factor of production, which is called organization. Now, what is organization, or who is an organizer or entrepreneur? An organizer or entrepreneur is an individual or body of individuals who brings the other three FOP, means factors of production, together and makes production possible. यानी ऑर्गेनाइज़र और एंटरप्रेन्योर या वो एक शख्स हो सकता है या कुछ लोग हो सकते हैं जो बाकी तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके प्रोडक्शन मुमकिन बनाते हैं, प्रोडक्शन का प्रोसेस मुमकिन बनाते हैं. ठीक है, दिस इज़ व्हाट an entrepreneur or organizer means. This word begins with E, but it is pronounced as if it starts with an O. I really have some difficulty pronouncing it as entrepreneur, लेकिन that is its correct pronunciation. हम अपने पाकिस्तानी स्टाइल में इसको entrepreneur बोल देते हैं, but actually में इसकी pronunciation entrepreneur है. And what about Professor Knight? He was another economist, and he has defined entrepreneur as a person who performs the dual functions of risk taking and कंट्रोल. यानी entrepreneur वो शख्स होता है जो रिस्क टेकिंग भी करता है और काम को कंट्रोल भी करता है. अब रिस्क टेकिंग क्यों करता है? लेबर के लिए कहीं भी ये लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ था कि ही टेक्स द रिस्क. Laborer is do as directed kind of a सिचुएशन जहाँ पर जो उसको एम्प्लॉयर कह देता है लेबर को वो चीज़ करनी पड़ती है. लेबरर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता रिस्क टेकिंग के लिए, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो रिस्क टेकिंग करता है और बाकी सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. Now, moving towards the functions of entrepreneur, I'm going to do it very briefly just to give you an idea what is the job of the entrepreneur. The first thing is he prepares the plan. Now, this is the first function of the entrepreneur, and he has to decide the nature of the business, and he is the one who plans what to produce, how to produce, and on what scale and at what level he has to produce it. He selects the site. Of course, he selects the place where he is going to start his business. He tries to select the most suitable site, and keeping in mind that he has to keep the cost of production low, and he would try to establish the business near the roadside or near a marketplace where all the resources are readily available. Third function is he provides capital. Now, capital is required for any business. Capital includes raw material, etc. So, if the organizer invests his own capital, the role of entrepreneur and capitalist will combine, or they will join together. And if own capital or self-owned capital is not enough, then the organizer is going to borrow it. And when he borrows the capital from the bank, he will be, of course, paying interest on it.
If he's not using his own land, he is definitely going to hire it and pay rent for it. And if he also hires suitable persons for various kinds of work involved in his production process, and he will try to hire the most efficient type of workers. Of course, that will reduce his cost of production. Fourth point is purchase of inputs, or he is the one who purchases raw material. Now the entrepreneur tries to purchase raw materials again at minimum cost. Poor quality, high cost, or delay in getting regular supply of raw materials may result in lower profits or even loss. So that is one thing that he does. Next is he decides combination of factors to be used. Now entrepreneur is going to adopt that combination of factors which is again for the same purpose, which is going to cost him to the minimum level. अब उसकी चीज़ की प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, किस स्केल पे कर रहा है. अगर स्केल बड़ा है तो कैपिटल ज़्यादा होगा और लेबर कम होगा, और अगर उसकी प्रोडक्शन का स्केल छोटा है तो हो सकता है लेबर ज़्यादा हो, कैपिटल की कम ज़रूरत हो. तो उसकी चीज़ की प्रोडक्शन के मुताबिक जो है ही इज़ गोइंग टू कंबाइन दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Next is supervision and management. For management of the business, the entrepreneur may himself devote time, or he may hire a suitable manager. दोनों काम वो कर सकता है. Supervision of other people's work is very difficult. So those who are expert in this art get things done smoothly and efficiently. Supervision एक मुश्किल काम है. लोगों को मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, it's difficult. So he will be truly efficient if he is able to supervise and manage things nicely. Next is responsible for sale of goods. Now the responsibility is for an entrepreneur is not only to produce the product, but he's also responsible to sell it at reasonable enough prices to earn him profit. And for increasing sales, he may refer to publicity and advertisement of his product, and that can be done through प्रिंट मीडिया, यानी न्यूज़पेपर्स में दे दे, पैम्पलेट्स वगैरह छपवा दे, या रेडियो पे, टीवी पे और इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पर इश्तिहार वगैरह चलाए. क्योंकि सिर्फ चीज़ को बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको सेल करना लार्ज नंबर में ये भी उसकी ज़िम्मेदारी है. सो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल एज वेल एज़ पब्लिसिटी. नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग. मैंने यहाँ पर गलती से टी लिखा हुआ है. Risk taking. Now an entrepreneur is wholly responsible for the success or failure of his business. He undertakes a risk of loss in the expectation of profit. The basic difference between labor and entrepreneur is the responsibility of risk taking. Risk taking यही कर सकता है, लेबरर नहीं कर सकता. फ़ायदा होगा तो भी इसको होगा, लॉस होगा तो भी इसी को ही होगा. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट मेक्स हिम यूनिक. नंबर 9 है he makes payment to other factors of production. Now this point is simple, that when he makes some commodity or product and sells it in the market, he gets some returns, he gets that money, some money, and he uses that money to pay labor its wages, to pay rent for the land if it's hired, and if he has taken loan from the bank, he has to pay interest on that. तो इसको तमाम factors of production को payment भी करनी होती है. It's one of its biggest responsibilities. Now he is the one who makes innovations and search for markets. Innovation means introduction of new products, improvement in the quality of existing ones, or search for more efficient methods of to produce the commodity, या search for new efficient markets, वो भी innovation में आ सकता है. अब
entrepreneur is always making effort to introduce something better than his rivals in the market. So innovation plays a very important part in the success of his business. अगर ये अपनी कमोडिटी को इनोवेट नहीं करेगा, औरों से बेहतर नहीं बनाएगा, उसको सेल करने के लिए नई नई जगह, नई नई मार्केट्स नहीं सर्च करेगा, तो इसकी तरक्की जो है या इसकी आप कह लें सक्सेस जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी. So if he wants to be successful in his business and excel further in his business, in order to earn more profits, he has to be innovative and he has to search for more markets in order to increase his sales. Then next is quality of product. Now an entrepreneur is the one who determines the quality of his product. In many cases, it's the reputation of a firm about quality of the products which ensures success in business. यानी कि आपकी बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की कौन सी क्वालिटी मार्केट में ला रहे हैं. तो ये क्वालिटी डिटरमिन करना किसकी ज़िम्मेदारी है? एंटरप्रेन्योर की. And last is that he keeps himself in contact with the government. बहुत से businesses ऐसे होते हैं जिसमें आप बग़ैर गवर्नमेंट के थ्रू हुए आप लीगली अपने सारे फंक्शंस नहीं कर सकते. आपको लाइसेंस चाहिए होता है, आपको टैक्स देना होता है, आपको यू नो परमिशंस चाहिए होती हैं, सैंक्शन करानी होती हैं चीज़ें कि आप ये चीज़ कर भी सकते हैं कि नहीं. तो गवर्नमेंट का कोई भी बिज़नेस जो है अगर वो आप लीगली रन कर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट के जितने इदारों से गुज़रना पड़ेगा वो एक एंटरप्रेन्योर को ही करना पड़ेगा. ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम लीगैलिटीज़ को देखे और उनको कवर करे. ठीक है. So these were some basic functions of entrepreneur. Now come towards the forms or types of organization. And as I said in your smart syllabus, it's only mentioned that we have to just teach you the introduction, but still मैं अपनी आदत से मजबूर थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको कराऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा याद रह जाए. ओके. बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की 3-4 किस्में हैं. सबसे पहला है सोल ओनर. सोल ओनर, इसको सोल प्रोप्रिएटर भी कहते हैं, इंडिविजुअल ओनर भी कहते हैं. ये जो SOLE सोल होता है ना, दिस मीन्स वन. तो अगर किसी बिजनेस को चलाने वाला सिर्फ एक बंदा है, ठीक है, देन दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्रिएटरशिप और इंडिविजुअल ownership. Okay. I hope I'm clear here that if there is only one person running the business and he is responsible for all the functions described on the previous page, then that type of business or that type of organization is called sole proprietorship or individual ownership. Now, it's one of the oldest, simplest and most common form of business organization. ठीक है. सबसे पुराना तरीका है, सिंपल है और सबसे ज़्यादा हम मार्केट में अपनी इकोनॉमी में देखते हैं कि सोल प्रोप्रिएटर्स और इंडिविजुअल ओनर्स के नंबर सबसे ज़्यादा हैं. नाउ इन दिस फॉर्म अ सिंगल पर्सन ऑर्गेनाइजेस द बिजनेस एज आई टोल्ड यू अर्लियर. ही प्रोवाइड्स लैंड, लेबर एंड कैपिटल. वही रिस्पॉन्सिबल होता है लैंड, लेबर और कैपिटल की प्रोविज़न का. अब इसमें भी वही बातें आ जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सब उसका ख़ुद का हो, वो इनको हायर भी कर सकता है, लेकिन इनकी फिर जो पेमेंट होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़िम्मेदारी है और किसी और की नहीं. ही अलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम प्लानिंग टू प्रोडक्शन टू सेल. हर चीज़ उसकी ज़िम्मेदारी है. ज़ीरो से, स्क्रैच से बिज़नेस को शुरू करना, प्लान करना, उसकी प्रोडक्शन के तमाम तरीके और आखिर तक सेल तक सारा उसके उसमें आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में. एनी प्रॉफिट और लॉस इज़ बोर्न बाय हिमसेल्फ.
चूँकि वो बिज़नेस को रन करने वाला अकेला बंदा है, प्रॉफिट होगा तो वो भी उसको वही एंजॉय करेगा, और लॉस होगा तो भी वो उसको खुद ही बेयर करना है. ही कैन नॉट ट्रांसफ़र इट टू समबडी एल्स. Now, one personal person businesses are common in retailing, farming, construction, and in personal services such as hairdressing, tailoring, and providing home tuitions, etc. तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिखी हुई हैं जो हमें नज़र आती हैं सोल प्रोप्रिएटरशिप की. रिटेलिंग में लोग ये काम करते हैं, एक बंदा होता है, सारा रिटेल का बिज़नेस उसने संभाला होता है. फार्मर्स जो हैं वो अक्सर सोल प्रोप्रिएटर के मॉडल पर काम कर रहे हैं. कंस्ट्रक्टर्स जो हैं आपके ठेकेदार वगैरह वो ख़ुद करते हैं, या कोई एक शख्स अगर कोई मज़दूर है, गिलकार है, वो भी एक इट्स अ फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्रिएटरशिप और सोल ओनरशिप. पर्सनल सर्विसेज भी जो लोग हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे हजाम वगैरह हो गए, हेयर ड्रेसर्स, टेलर्स, और जो घरों पे ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं सोल ओनरशिप की. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट type of organization, which is sole ownership or sole proprietor. Now moving on to the second one, which is partnership. अब ये second, let me check the frame. हाँ, second type of business organization is called partnership. अब ये लफ्ज़ आपने सुना होगा, partnership. Partnership means when two or more persons join to run a business. It's called a partnership. And a partnership is a business firm jointly owned by two or more people sharing the profits and jointly responsible for any losses. तो एक डेफिनेशन थोड़ी शॉर्ट है, दूसरी थोड़ी लंबी है. उसमें यही है कि जब एक या एक से ज़्यादा लोग आकर बिज़नेस रन करें और वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हों किसी प्रॉफिट और लॉस के, तो दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप. अब इसकी ख़ास बातें क्या हैं पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप टेक्स प्लेस अमंग दोज पर्सनस हु आर आइदर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और नोन टू ईच अदर. जान पहचान के लोग, वो फ्रेंड्स हों, रिश्तेदार हों, जान पहचान वाले हों, वो आकर आपस में पार्टनरशिप करते हैं यूजुअली. ठीक है, और पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड. जैसे आपको मैंने बताया कि ये प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग की बेस पर होती है हमेशा पार्टनरशिप. It is created through agreements, ownership ownership of shares and duties of partners are satisfied. यानी प्रॉपर पार्टनरशिप सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं की जाती, इसकी बाकायदा लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, एग्रीमेंट तैयार होता है, उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ओनरशिप के शेयर्स कितने होंगे पार्टनर्स के, और पार्टनर्स कौन कौन सी ड्यूटीज़ करेंगे, ये तमाम स्पेसिफाई की जाती हैं. सो इट इज़ समथिंग विच इज़ अचीव्ड थ्रू लीगल प्रोसेसेस. यानी वकील के थ्रू आप सारा कागज़ात तैयार करके एग्रीमेंट किया जाता है, फिर उस पे सारे पार्टनर्स बाउंड होते हैं उसको फॉलो करने के लिए. अब पार्टनरशिप्स आर कॉमन इन प्रोफेशन सच एज डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस एट्सेट्रा. आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं. ठीक है, वो भी पार्टनरशिप की एक किस्म है. आर्किटेक्ट्स ये काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाले भी इसी तरह पैसा पूल करके, कैपिटल पूल करके और पार्टनरशिप की बेस पर बिजनेसेस करते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं. अब पार्टनरशिप की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं. वर्किंग पार्टनर कहते हैं पार्टनर्स हु आर फुली पार्टिसिपेटिंग इन डेली फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. यानी जो एक्चुअली में आकर वर्किंग प्लेस पर डेली फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं, डेली आकर ऑफिस वर्क कर रहे हैं, उनको कहते हैं वर्किंग पार्टनर्स.
नेक्स्ट टाइप इसकी होती है स्लीपिंग पार्टनर्स. नाउ अ पर्सन में इन्वेस्ट हिज कैपिटल इन सम बिजनेस विदाउट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, सो ही इज़ कॉल्ड अ स्लीपिंग पार्टनर. यानी एक शख्स आकर फिजिकली रोज़ाना ऑफिस में ऑफिस वर्क नहीं कर रहा, पेपर वर्क नहीं कर रहा, फाइलें नहीं देख रहा, भागदौड़ नहीं कर रहा, उसका सारा कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, उसने पैसा प्रोवाइड किया है और काम कोई और कर रहा है, तो काम करने वाले वर्किंग पार्टनर्स हो गए, और जिसने सिर्फ कैपिटल प्रोवाइड किया है ही बिकम्स स्लीपिंग पार्टनर. थर्ड है पार्टनर्स विदाउट कैपिटल. नाउ अ पार्टनर may be included in the business because of his special skills about the business and he does not invest capital but provide technical advice only. बाज़ दफ़ा लोग सिर्फ अपने स्किल या एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड की वजह से पार्टनरशिप में शामिल कर लिए जाते हैं, क्योंकि उनका मार्केट में किसी चीज़ से रिलेटेड एक नाम होता है और ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे भी इन्वेस्ट करें, सिर्फ उनका नाम चलता है. ठीक है, तो उस नाम से फ़ायदा उठाने के लिए उनको पार्टनर बनाया जाता है एंड दे आर कॉल्ड पार्टनर्स विदाउट कैपिटल. विदाउट कैपिटल ऑब्वियसली इट मीन्स दैट दे आर नॉट investing anything or investing any money, they kind of only invest their skill and experience. Now coming towards the third form of business organization, which is called joint stock company. जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे पहले हमने कर लिया सोल प्रोप्रिएटर, नेक्स्ट हमने कर लिया पार्टनरशिप, अब ये थर्ड किस्म है. When a number of persons who may be unknown to each other join together to invest their capital in some common business, it is called joint stock company. अब कुछ लोग जो इकट्ठे हो जाएं, वो they may be unknown to each other, they may know each other and they may be unknown to each other, they come together, they invest their capital for some business, that is what makes a joint stock company. अब जॉइंट स्टॉक कंपनी की ट्रीटमेंट जो होती है वो एक लीगल पर्सन की तरह होती है, ये एक लीगल एंटिटी है. ठीक है, जो अपने नाम से बिजनेस कंडक्ट करती है. सो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट्स अ लीगल एंटिटी और इट्स ट्रीटेड लाइक अ लीगल पर्सन दैट कैरीज आउट बिजनेस इन इट्स ओन नेम. यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम होता है और उस कंपनी को एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, एक लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है. अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड. एट द मोस्ट दे ओनली लूज़ मनी स्पेंट ऑन बाइंग शेयर्स. यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो भी शेयर्स ख़रीदता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है. अगर उनको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लॉस हुआ किसी कंपनी को, तो शेयर होल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा जितने मालियत के उन्होंने शेयर्स ख़रीदे होंगे उनको बस वही नुकसान बेयर करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं होती. अब जॉइंट स्टॉक कंपनी की एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे लिखी हैं: कोका कोला, सोनी, एमसीबी, लिप्टन, पीएसओ, शीज़ान एट्सेट्रा. और ये इन सब को मार्केट में इसी तरह ही ट्रीट किया जाता है जैसे कोई लीगल पर्सन या लीगल इंडिविजुअल. ठीक है, दे आर ट्रीटेड लाइक लीगल इंडिविजुअल्स. अब जॉइंट स्टॉक कंपनी हमेशा बनती है, हर मुल्क के कवानीन डिफरेंट होते हैं, उन कवानीन के अंडर जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी इस्टेब्लिश या की जाती है या बनाई जाती है. ठीक है, हर कंट्री के अपने होते हैं. अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ की दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट: पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अब थोड़े से मैंने इनके दो डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हैं. पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़ लिस्टेड एट स्टॉक एक्सचेंज एंड इट मस्ट हैव एट लीस्ट 7 members अप टू देयर इज़ नो लिमिट. यानी ये मैंने शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ था, इट्स नॉट इन प्रॉपर सेंटेंसेस. यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की लिस्ट में मौजूद होती है और उसके बनाने के लिए मिनिमम आपको 7 members चाहिए और अप टू मैक्सिमम नंबर, यानी 7 से लेकर अनलिमिटेड तक उसके मेंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, और अब चूँकि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, लिहाजा ये अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में
सेल कर सकते हैं. दे कैन रेज कैपिटल इन द स्टॉक मार्केट्स बाय सेलिंग देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है? एंड इट्स अ प्राइवेट कंपनी मे हैव ओनली टू अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स. यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 तक मेंबर्स रख सकते हैं. लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर स्टॉक मार्केट में सेल नहीं कर सकती. ठीक है, ये आपके कुछ मेजर डिफरेंसेस हो गए कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है. वो एक लीगल एंटिटी है, कंट्री के कानून के मुताबिक बनती है और उसकी 2 टाइप्स है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड. और उसकी नेचर के मुताबिक उसके मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पे. ठीक है, ये कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ऐड द वर्ड लिमिटेड और LTD एट द एंड ऑफ देयर नेम्स लाइक बाटा पाकिस्तान लिमिटेड. तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो अपने नाम के आखिर में लिमिटेड लगा देती हैं. जैसे बाटा पाकिस्तान लिमिटेड, एंड में LTD लगा होता है. तो नेक्स्ट टाइम आप किसी कंपनी के एंड में LTD लिखा देखें तो आपको एकदम से समझ आ जाना चाहिए कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. और अब आपको ये भी पता चल गया कि पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में फ़र्क क्या होता है. दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर आल्सो कॉल्ड कॉरपोरेशंस एंड ऑल जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन अ कंट्री आर कॉल्ड कॉरपोरेट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. ये अक्सर ये लफ्ज़ टीवी पर हम तज्जिया निगारों को बोलते हुए सुनते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर में उसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है और कानून बदल गया तो कॉरपोरेट सेक्टर को ये नुकसान हो गया, ये फ़ायदा हो गया. तो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं इनको ऑल टुगेदर कॉरपोरेशंस कहा जाता है. और एक कंट्री में जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज हों उनके लिए कॉरपोरेट सेक्टर का लफ्ज़ लिखा जाता है. और किसी भी कंट्री की तरक्की में ये कॉरपोरेट सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है. इनमें बहुत सारा कैपिटल फ़्लो कर रहा होता है. ये कंपनीज़ बहुत सारा मनी जनरेट कर रही होती हैं. तो डेवलपमेंट किसी कंट्री की स्पीडी करने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर को फैसिलिटेट करना भी बहुत ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू फैसिलिटेट करना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट है कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज हु हैव स्प्रेड देयर एक्टिविटीज़ इन मैनी कंट्रीज़ आर कॉल्ड मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, MNEs. मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस उसी से बना है MNEs, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस. और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, TNCs, लाइक बाटा, नेस्ले, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, फिलिप्स एट्सेट्रा. मल्टीनेशनल कंपनीज़ हम अक्सर ये लफ्ज़ सुनते हैं, मल्टीनेशनल है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है. तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ या एंटरप्राइजेज़ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ ही होती हैं. लेकिन ये चूँकि बहुत सारी कंट्रीज़ में फ़ंक्शन कर रही होती हैं, इनके हेड ऑफिसेस एक कंट्री में होते हैं और ये इन्होंने अपने पाँव फैलाए होते हैं पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ में. इसलिए इनके ये दूसरे नाम हैं, MNEs और TNCs, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज़ या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस. अच्छा, और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को मैनेज कौन करता है. आखिर इसकी मैनेजमेंट भी तो होती होगी ना. दैट इज़ डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट हम आ गए अपनी 4th फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, दैट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. Now, it's a form of business organization in which individuals having common needs join hands to make a voluntary association for some common economic interest. यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये होती है जिसमें ऐसे इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो जाते हैं जिनका और उन पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है. वो अपनी मर्ज़ी से एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं किसी एक मकसद को अचीव करने के लिए. और ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अक्सर बनाई जाती हैं फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. यानी कि किसी कमज़ोर तबके को बेहतर बनाने के लिए, उसकी हेल्प आउट करने के लिए, उसको सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं.
और इसका मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स, कि यानी इसमें जिनके लिए बनती हैं उनकी वेलफेयर पर्पसेस के लिए ये सोसाइटी बनाई जाती है। ये सोसाइटीज़ भी लीगल एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, इनको भी एक लीगल शक्ल दी जाती है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान साइकिल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लाहौर। तो ये साइकिल इंडस्ट्री ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है जिसका ये नाम है। अब इसका मकसद क्या होगा कि पाकिस्तान की साइकिल इंडस्ट्री को से रिलेटेड लोगों को हेल्प आउट की जाए, उनकी वो बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकें, उनकी प्रोडक्ट्स बेहतर कीमत पर बिकें, उनकी मार्केट एक्सटेंड हो, यानी वो ज़्यादा इनकम अर्न करें, सोसाइटी में ज़्यादा बेहतर लेवल पर आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान साइकिल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लाहौर जो है इसके अंडर पॉसिबल हो सकती हैं। So this is what was cooperative society. Now coming towards the last form of business organization, which is called public corporation या state enterprises, या इसको हम public sector भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, अक्सर मैं स्टूडेंट से कहती हूँ व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर, तो वो कहते हैं जो लोगों से रिलेटेड होगा वो पब्लिक सेक्टर है। क्वाइट नॉट ट्रू। पब्लिक सेक्टर कहते हैं ऐसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जिनको हुकूमत ओन कर रही हो और चला रही हो, ठीक है। ये यहाँ मैंने एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है दैट पब्लिक कॉरपोरेशंस आर दोज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स विच आर ओन्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इनको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, SOEs, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, या पब्लिक एंटरप्राइजेस, PE। ये ज़रा सा आपकी किताब में नहीं है, लेकिन रिसर्च पेपर्स वगैरह में ये वाली स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, अखबारों में ये चीज़ आती है, SOEs, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस या पब्लिक एंटरप्राइजेस। सम कंसिस्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़ सच एज़ पोस्टल सर्विस। जो हुकूमत जो इदारे चला रही होती है वो हमें कभी कभी यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे पोस्टल सर्विसेज। अब पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज जो हैं ये पब्लिक यूटिलिटी का इदारा है, इसलिए ये चल रहा है। ओनरशिप और तमाम इसकी जो चला रही है इसको ओनरशिप भी हुकूमत की है और चला भी इसको हुकूमत रही है। Some work like joint stock companies like WAPDA and PIA। अब कुछ स्टेट एंटरप्राइजेस जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी होती हैं, ठीक है। उनकी वर्किंग जॉइंट स्टॉक कंपनीज की तरह होती है, वो अपना फाइनेंस जो है वो रेज़ करती हैं, और यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है जैसे वापडा और PIA, लेकिन ये हैं पब्लिक सेक्टर का ही हिस्सा हैं, ये स्टेट एंटरप्राइजेस हैं, बट देर आर वर्किंग लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनीज। सम आर पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। कभी कभी जॉइंट ये जो पब्लिक कॉरपोरेशंस होती हैं इनकी 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की नहीं होती, कुछ ओनरशिप ये प्राइवेट इदारों की भी होती है। जैसे एक टाइम पे PTCL जो था वो 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट था, फिर इसके कुछ शेयर्स सेल कर दिए गए थे और वो पार्शली ओन्ड हो गया था। अब वो मज़ीद उसकी जो है वो ओनरशिप हुकूमत की और भी कम हो गई है। इट इज़ नो लॉन्गर पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ज़्यादातर वो प्राइवेट ओनर्स पे सेल हो गया है, या आप कह लो उसकी वर्किंग जो है वो प्राइवेटली अब हो रही है। इट इज़ नो लॉन्गर पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कुछ इदारे कभी कभी पार्शली ओन्ड होते हैं और कुछ जो है वो 100% गवर्नमेंट के ओनरशिप में होते हैं और हुकूमत उनके मामलात को संभाल रही होती है। ओके, एंड दैट्स अबाउट इट। वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन, जिसमें हमने पढ़े ऑर्गेनाइजेशन और उसकी 5 फॉर्म्स, उनकी एग्जांपल्स और उनकी डेफिनेशंस। आई होप इट वाज क्लियर टू यू। थैंक यू।